welcome back or welcome to Sena Swapna, and of course happy monsoons everybody. So I'm back today with another video which is kind of sensitive and of importance to me. I'm going to talk about traveling as a person with disability. Now why I've chosen this theme for this particular video is because July is celebrated as a Pride Month for the persons with disability. So Disability Pride Month. Now why it is celebrated as Disability Pride Month is from what I have read on the internet. You can correct me if you have any more information on this, but in the year 1990, or at least in the early 90s, an act was passed in the American Constitution wherein the inclusion, the equality, the rights, the accessibility and the visibility of persons with disability was given to the people through this act. I'm going to talk about traveling as a person with disability because, as you must have seen in my vlogs which I uploaded recently, I took two back-to-back trips in the month of summer, in summer vacation. Now in all the both trips that I took, I do not mean to say that normal people or people who do not have any visible or invisible disabilities, they have it easy. I by no means want to say that only people with disabilities face problems and this and that. They also do face problems, but what I mean is that people who have limitations to their mobility, people who are not physically very fit as compared to their able or normal counterparts like me, uh, do have a ton of difficulties or a ton of challenges to face. And even before they go on a trip or they decide to travel, there's a lot many questions and a lot many things that we need to consider even before we book our tickets or even before we decide on a destination. So I'm gonna talk about traveling as a PWD from first hand experience. If you have not checked my previous video where I talked about my disability, please go on my channel. I have a video uploaded over there about my disability. That's when you will be able to understand what all I'm going to talk about in this video. For me, or I will say for many of the PWD, my fellow PWDs, the main question that arises when we decide to go on a trip or a travel is the destination. Whether that destination is going to be accessible, like if a person is on a wheelchair or uses crutches or braces or any sort of mobility aid, will that person be able to go around to all those places where there might not be stairs or ramps or well-built roads or lifts or elevators or whatever the mobility need of that particular person is, connected to which I feel to get to that particular destination जो travel होने वाला है. See, not everybody can afford flights, not everybody can afford expensive modes of transport. We have road transport, we have buses, we have trains, we have, like, yeah, some people can travel in a four-wheeler with their family or friends or something like that. Flights hai. But even to get to those places and to board the vehicle, is it going to be accessible or not? If not, how and if are we going to ask for that accessibility need कि अगर एयरपोर्ट बड़ा है तो व्हील चेयर मिलने वाली है कि नहीं, आर दे गोइंग टू प्रोवाइड अस और इज़ इट गोइंग टू बी अवेलेबल और नॉट. भागा दौड़ी नहीं कर सकते ज़्यादा, अगर हम लेट पहुंच गए या हमारा लाइक ट्रेन हो बस हो जो भी हो मिस हो रहा है तो देन व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव. बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको कम्यूट टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में भी सोचनी पड़ती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी जो हमको ध्यान में रखना पड़ता है वो है वेदर और द सीज़न. तो द थिंग इज़ कि नॉर्मल सीज़न में जैसे अगर विंटर्स में चले गए तो बाकी लोगों को भी जो स्ट्रॉन्गर होते हैं हमसे, इम्यूनिटी उनकी अच्छी होती है, एबल्ड होते हैं सो टू से, उनको सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, उनको वेदर अफेक्ट कर सकता है. तो हम जो होते हैं, हमारी इम्यूनिटी वैसे भी मार खाई हुई होती है, अफेक्टेड होती है काफ़ी हमारी इम्यूनिटी, तो हम जल्दी इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं या जल्दी हम बीमार पड़ सकते हैं. द वेदर कैन अफेक्ट अस एडवर्सली. तो वेदर हो गया, वहाँ का जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट हो गया, तो वो सूटेबल होने वाला है कि नहीं. इफ़ यू डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस इन माइंड, तो हम उसको कैसे कोप अप करने वाले हैं. द मेडिसिन दैट वी आर गोइंग टू नीड, वेदर वी नीड टू कैरी देम ऑल,
पूरे स्टॉक में, या तो फिर हम जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ पे विद द प्रिस्क्रिप्शन वी कैन गेट देम और नॉट। ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है कोई कोई जो हम रेगुलर बेसिस पे अलग ब्रांड या अलग नाम से कोई खा रहे होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं लोकली वहाँ पे कोई अलग मिलती है मेडिसिन, तो उन चीज़ों के लिए हमको तैयारी रखनी पड़ती है। फर्स्ट एड है। सो हम जो पैकिंग करते हैं ना, हम जो लगेज लेके जाते हैं, बाकी लोग शायद मैचिंग आउटफिट्स, शूज़, ये वो, फ़ोटोशूट करना है, ये करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखते होंगे। बट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वी नीड टू पैक लाइट एज रिगार्ड्स आवर एक्सेसरीज़ और क्लोथ्स एंड फैशन और वैनिटी की चीज़ें हमको मेडिसिन्स ठीक से कैरी करनी पड़ती है अपनी। तो कभी कभी इस बात से फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है कि यार बाकी सब इतने अच्छे से फ़ोटोशूट कर रहे हैं एंड हम जो है हमारा आधे से ज़्यादा लगेज तो मेडिसिन और इन चीज़ों से ही भरा हुआ है। बट दैट्स लाइफ। लाइक I feel being a person with disability need not stop you from enjoying the good things in life. आपके जैसे कैपेसिटी में हो आप enjoy करो। Related to the medicines, related to the weather and the season, I feel a lot many people with disabilities also face food allergies, reactions, या तो फिर सूट नहीं होता उनको खाने की चीज़ें, लोकल फूड हो गया या जो भी वहाँ का लोकल क्विजीन हो गया। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ड्राई स्नैक्स या तो फिर थोड़ा बहुत अपना एटलीस्ट भूख के टाइम पे पेट भर सके उतना थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें भी हमको कैरी करनी पड़ती है एट टाइम्स। तो इन सारी चीज़ों को भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वन थिंग दैट आई पर्सनली हैव नॉट फेस्ड बट a lot or a few at least of my fellow PWDs might have faced, अगर आप में से कोई है ऐसा तो मुझको बता देना कमेंट्स में। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। कि जब ट्रैवल की बात आती है तो सोशली या अपने आस पड़ोस में बहुत सारे टॉन्ट्स या बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल सकती है टू यू इफ़ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और इवन योर पेरेंट्स और योर फैमिली, अगर वो आपको कहीं लेके जाना चाह रहे हो तो। एक दो इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं मेरे भी लाइफ में जब मैं लेजर के लिए ट्रैवल नहीं कर रही थी। आई वॉज़ नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर फन। मैं कुछ प्रोफेशनल या एकेडमिक्स से रिलेटेड ट्रैवल कर रही थी एंड आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन इन द सेंस नॉट विथ माई फैमिली और नॉट विथ माई पेरेंट्स। आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स। हमारा जो ग्रुप था उनके साथ। तो तब थोड़ा सा ऐसा रिस्पॉन्स आया था मुझको भी, मेरे पेरेंट्स को वगैरह भी, कि अकेले कैसे भेज रहे हो इसको, ये मैनेज नहीं कर पाएगी या कोई प्रॉब्लम आ गया तो कैसे हैंडल करेगी एंड ऑल दैट। आई हैव रेड स्टोरीज़ जब लोग ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं कि इसको बाहर घूमने की क्या ज़रूरत, इसकी जाके करेगी क्या बाहर ऐसा, या इसको थोड़ी ना कुछ समझ में आता है जो आप उसको घुमाने ले जा रहे हो। आई फील इट्स नन ऑफ एनीबडीज़ कंसर्न कि अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको घर के अंदर ही कैद रखना है या उसको बाहर ले जाके एक्सपोजर देना है। उसको भी लाइफ के प्लेजर्स, लाइफ के जो हैप्पीनेस, जो जॉयज़ है वो एक्सपीरियंस करने का हक है। ये सब चीज़ें उसकी फैमिली डिसाइड करेगी, ये सब चीज़ें उसके पेरेंट्स और वो खुद भी डिसाइड करेगा। इवन इफ़ वी आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम भले ही बॉडी से डिसेबल्ड हो, हमारी बॉडी में कुछ कमियां हैं, हमारा दिमाग तो है, हमारा माइंड तो है, हमारा हार्ट तो सही जगह पे है। तो मैं कहूँगी कि बहुत सारे PWDs जो है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उनको आता है अपनी तरीके से लाइफ एंजॉय करना। देन हु आर यू और वाई डू यू वांट टू डिप्राइव देम ऑफ दिस जॉयज़ इन लाइफ। वो अपनी तरीके से मैनेज कर लेंगे। अडेप्टिबिलिटी हमको सिक्स्थ सेंस के रूप में मिली है, या तो मैं कह सकती हूँ कि सिक्स्थ सेंस के अलावा सेवन्थ सेंस हमारा अडेप्टिबिलिटी का होता है। और काफ़ी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो हम जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है, या हमारे रिस्ट्रिक्शंस हमको पता होते हैं, हमारे लिमिटेशंस, हमारी कैपेबिलिटीज़ हमको पता होती है। वी डू हैव दैट मच ऑफ ब्रेन्स टू डिसाइड कि अरे यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे जाऊँगी तो तकलीफ़ होगी मुझे, आई बेटर स्टे पुट। उसके बाद ये पॉइंट आता है कि जब आप ट्रैवल करके ख़त्म करके घर वापस आ गए, एवरीबडी गेट्स टायर्ड। आई फील कि हम ट्रैवल के लिए जाते हैं, पिकनिक लेते हैं, कोई ट्रिप्स लेते हैं जस्ट टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट, बट समटाइम्स वी एंड अप डूइंग सो मेनी थिंग्स। समटाइम्स बहुत एडवेंचर्स करते हैं, बहुत घूमते हैं, छोटे से स्पैन में बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी जगह देखनी है, बहुत एक्सपीरियंसेस लेने हैं। इस चक्कर में हम डबल एग्जॉस्ट होके घर वापस आ जाते हैं। तो
अगर नॉर्मल लोगों के साथ ये होता है, जो पीडब्ल्यूडी नहीं है उनके साथ ये होता है, तो देन यू कैन इमेजिन कि जिनको रिस्ट्रिक्शंस है, फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम अ ट्रैवल, तो एक्सट्रीम वेदर्स में घूम के आए, एक्सट्रीम टेरेन्स पे घूम के आए, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट फिजिकली एग्जॉस्टेड। वो एक इशू है जो पोस्ट ट्रैवल केस में आपका माइंडसेट हो जाता है कि थैंक गॉड घर पे आ गए, अब मैं रेस्ट करूँगा या रेस्ट करूँगी। सो फिर वो पूरे ट्रैवल का पॉइंट ही नलीफाई हो जाता है कि आप रिलैक्स करने के लिए गए हो और डबल एग्जॉस्ट होके घर पे आए हो जब आपको रेस्ट करनी पड़ रही है, वेर यू शुड बी गेटिंग बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। योर डूज एंड डोंट्स यू नीड टू नो एंड यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। पिछले 10 सालों में बहुत जगहों पे ट्रैवल किया है मैंने मेरे फैमिली के साथ, इंटरनेशनली भी, इंडिया में भी, बट ये जो मेरी पर्टिकुलर ट्रिप थी इस समर वाली, जो बैक टू बैक 2 ट्रिप्स थी, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैंने ये सब पॉइंट्स आपको बताए आज, जिसमें से लास्ट पॉइंट ये है कि जो अथॉरिटीज़ है हमारी, या जो जहाँ पे हम ट्रैवल करने जा रहे हैं वहाँ पे जो लोकल गवर्निंग बॉडी है, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की, या उनको थोड़ा सा ज़ोर डाल के इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है कि एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ गवर्नेंस लेवल पे फिक्स होने चाहिए। जैसे अब आपने देखा होगा कि मैं जो हिमाचल के व्लॉग में जो मैं गार्डन में एक जगह घूमने गई थी, वहाँ पे रैम्प्स दिखाई दिए मुझको, मैं पूरा रैम्प्स पे ही घूमी हूँ। या तो फिर कोई कोई जगह पे लिफ्ट्स अभी है, काफ़ी जगह पे मैं जहाँ पे घूमी हूँ लिफ्ट्स अवेलेबल है, या तो फिर व्हीकल्स भी हम ऐसे ले जाते हैं जो जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट तक पहुँचते हैं आप, सो आपको चलना कम पड़े। But that's for people like me who can manage to walk. What about people on wheelchair, or what about people on crutches, या जिनको उठा के ही घूमना पड़ता है? छोटे होंगे उम्र में, छोटे बच्चे होंगे PWDs तो ठीक है, फिर भी when you are a grown up it's altogether different and it's very difficult then। तो ये लोकल जो गवर्निंग बॉडीज़ है, टूरिज़म के जो हमारे अथॉरिटीज़ है, तो उनको ये चाहिए कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे जाके ये सब चीज़ें सोचे कि कौन से टूरिस्ट प्लेसेस पे कौन से एक्सेसिबिलिटी मोड्स अवेलेबल करा सकते हैं एंड कराने चाहिए। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे प्लीज़ करा दो, जहाँ पे नहीं पॉसिबल है, जैसे पहाड़ों में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे व्हीकल्स भी जाना मुश्किल है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझको बोला था जो अनफॉर्चुनेटली हु आर नॉट एबल टू वॉक, कि तुम घूम के आ रही हो तो हमको बताना कि कौन सी प्लेसेस एक्सेसिबल है, हमको भी घूमना है। आई फील बैड, आई फील लाइक कि यार अगर अच्छे होते इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स भी घूम के आते। दिस वॉज अबाउट ट्रैवलिंग एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो मेरे दिमाग में पॉइंट्स आए, जो मैंने एक्सपीरियंस किए रिसेंट के मेरे ट्रैवल्स में, वो मैंने आपको बताया। इफ़ यू वांट टू ऐड टू दीज पॉइंट्स, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशंस कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ, तो मुझको कमेंट्स में बता देना। वेटिंग फॉर योर फीडबैक, एंड मुझको बताना कि आज का ये आपको वीडियो कैसे लगा, आपके क्या थॉट्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।